Hello friends, today we are here to discuss a very important topic which is the base of any of the physics chapter. If we talk about physics itself, generally what I observed कि when the students move from grade 10 to grade 11, जब बच्चे grade 10 से grade 11 में promote होते हैं, especially जो science लेते हैं, तो उनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर उनका कैलकुलस वाला जो पोर्शन है अगर वो स्ट्रांग नहीं है. जनरली व्हाट वी डू, वी स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. We generally talk about instantaneous velocity, acceleration with the help of calculus, derivation of equations of motion with the calculus method, integration, differentiation. और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि before we straight away start physics, first we must discuss about differentiation and integration separately. इसी पर्पस से मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि what is integration and differentiation, what is the basic formula, why we use calculus. Okay, so let us start with the topic straight away. Calculus में हमको दो चीजें पढ़नी है. We have to discuss two things in calculus: differentiation and integration. What is the general meaning of differentiation? Differentiation means to separate out. It is also written as the rate of change. The meaning of differentiation is rate of change. Okay. Integration means, the meaning of integration is to add up. Okay. Suppose if I talk about this curve, आपको ये curve दिख रहा होगा. अगर मैं बोलूँ कि ये curve कुछ points से मिलके बना हुआ है, always the curves are made up of points. If I ask you to separate out the points, इसमें points निकालो. जैसे ये आपके points बने हुए हैं, ठीक है, इन पॉइंट से मिलके कर्व बना हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसके पॉइंट्स को निकालो. You have to separate out the points. So what you have to do? You have to do differentiation. और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपके पास ये ऐसे पॉइंट्स हैं, suppose you have these points. Okay, now you have to sum up. You have to sum up and you have to form a curve. So what you have to do? You have to do integration. दोनों vice versa चलते हैं, differentiation और integration. सबसे पहले मैं बेसिक फार्मूला डिस्कस कर लेता हूँ दोनों का. जनरल फार्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, इनवर्स फार्मूला, ये फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, बट बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं. x टू द पावर n. x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1. मतलब पावर सामने प्रोडक्ट में आ जाएगा और पावर टू द पावर का माइनस 1. x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n x टू द पावर n माइनस 1. कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे राइटिंग का फॉर्मेट क्या है. x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. डिफरेंशिएशन क्या था? n x टू द पावर n माइनस 1. इंटीग्रेशन क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. Okay, so what is the meaning of differentiation? To separate out. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, velocity. Suppose you have to move from this point to this point, x1 to x2 जाना है, and the time taken is from t1 to t2. So how will you write velocity? Displacement upon time. So how will you write displacement? Final point minus initial point. तो कितना आ जाएगा? Velocity is equals to x2 minus x1 upon t2 minus t1. आ गया velocity. इसको जनरली हम किस फॉर्म में लिखते हैं? डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज. जैसे x2 माइनस x1 लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया डेल्टा x. z2 माइनस z1 लिखा होगा, मैं बोलूंगा डेल्टा z. u2 माइनस u1 लिखा होगा, मैं बोलूंगा डेल्टा u. तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया? डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी. नाउ इफ आई कंसीडर डेल्टा t, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिमिट डेल t टेंड्स टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, इट इज टेंड्स टू 0, नॉट 0. It is not 0, it is tends to 0. Tends to 0 that means very small. तो अगर इसको मैं बहुत स्मॉल लेके चल रहा हूँ कि मुझे हर इंस्टेंट पे एनालिसिस करना है अगर, ओके, जैसे मैंने बोला ना, सेपरेट आउट करना है. सो इफ यू हैव टू डू द एनालिसिस एट एवरी इंस्टेंट, सो इफ आई राइट del t tends to 0, that means this complete expression can be written as dx by dt. मतलब डेल्टा को हमने d साइन से रिप्लेस कर दिया. So what is velocity? ये आ गया आपका v इज इक्वल्स टू dx by dt. ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का. तो dx by dt लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? dx by dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t.
टाइम के साथ x कैसा चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन का मैंने आपको एक छोटा सा यूज बताया। व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा dy by dx, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो ये x लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में x लिखा होता है, ये हमको वेरिएबल बताता है कि वैरी क्या हो रहा है। जो वैरी हो रहा है वही डिफरेंशिएट हो सकता है। Whatever parameter will vary, that will be differentiated. Constant cannot be differentiated. Constant का differentiation 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ dy by dx, मीनिंग क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका मीनिंग लिखा है, इसको ये लिखने का फॉर्मेट है। ओके, वेयर डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा d के साथ, x लिखा होगा, y लिखा होगा, z लिखा होगा, t लिखा होगा, व्हाटएवर इट इज, इट विल इंडिकेट इट इज वेरिएबल। तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dy by dx, तो y शुड बी फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 एग्जांपल लिख के रखे हुए हैं। विद दिस 10 एग्जांपल आई एम वेरी मच श्योर कि यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट डिफरेंशिएशन। Then we will discuss about integration. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा d by dx of x cube, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y is equals to x cube था। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, सपोज y is equals to x cube, और मैंने क्वेश्चन आपको बोला कि how to calculate dy by dx। क्या क्वेश्चन मैंने दिया? y is equals to x cube है और आपको फाइंड आउट करना है dy by dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। तो dy by dx के जगह पे y के जगह पे क्या रखने वाला हूँ मैं? x cube। तो क्या आ जाएगा? d by dx of x cube, सिंपल x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करो, n की जगह पे कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, न्यूमरेटर में भी x है, क्या है? कितना है? x क्यूब है। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो x to the power n वाला, n x to the power n minus 1, पावर सामने, तो ये 3 सामने आ गया, पावर minus 1 that is 3 minus 1 2, आंसर कितना आ गया? 3x square। सेकंड वाला देखो, डिनोमिनेटर में क्या है? dx। अब जो आंसर आया था उसको मैंने वापस से ले लिया एज अ क्वेश्चन। 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। 3 यहाँ पे क्या हो गया? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा आपका बाहर। इट विल बी आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन सिंबल। सो 3 d by dx ऑफ कितना बच गया? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से x स्क्वायर, 3 तो अलग ही हो गया, d by dx ऑफ कितना आ गया? x स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो x टू द पावर n का, n के जगह पे कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 into x पावर -1, 3 into 2 6 इज इक्वल्स टू आ गया 6x। ये तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इतना मैं इलैबोरेटिव बता रहा हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2 सामने आ जाएगा, 6 पावर -1 दैट इज 2 - 1, तो 6x। अब अगर 6x को वापस से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? d by dx ऑफ 6x इज इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जैसा यहाँ पे 3 था, ये बाहर आ गया, dx अपॉन dx। अब या तो इसको कैंसिल आउट कर दो, dx अपॉन dx 1, या फिर x का पावर यहाँ पे कितना है? द पावर ऑफ x इज 1, सो व्हाट यू विल डू, 1 सामने, n की जगह पे 1 रखेंगे, and 1 - 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, आंसर बिकम्स 6। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 6 का डिफरेंशिएशन। अब लास्ट में क्या बच गया? सिर्फ 6 बच गया, एक नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। जो वैरी ही नहीं हो रहा है वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। d by dx of 6 is equals to 0। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा d by dx of y to the power 4, बस और कुछ भी नहीं है, d by dx of y to the power 4। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कितना है? x, न्यूमरेटर में कितना था? y to the power 4। x का तो फंक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे जो y to the power 4 है उसको मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। Okay, in the denominator we have x, in numerator we don't have any function of x, so this y to the power 4 will be treated as constant
and the differentiation of constant is 0. ये आ गया 0. एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, dy dy of z to the power 4. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, dy मैंने लिख दिया, मतलब y वेरिएबल है. न्यूमरेटर में y है क्या, नहीं है, z to the power 4 है. दैट मींस z to the power 4 will be treated as constant and again its differentiation with respect to y will be 0. अगर वहां पे y का कोई फंक्शन होता तो हम उसको डिफरेंशिएट करते. 7th में देखो मैंने क्या दो फंक्शन ले लिए, dy dx of x square plus y square. तो जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ना वैसे ओपन कर दो, मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा, dy dx of x square dy dx of y square. अभी डिनोमिनेटर में दोनों जगह x है. सेकेंड टर्म में देखो न्यूमरेटर में x का कोई फंक्शन है क्या, नहीं है. क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर लिखा हुआ है. आंसर कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म का, 0, क्योंकि y स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या था, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है. ये फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट होगा क्योंकि यहाँ पे x है और न्यूमरेटर में भी x है. तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x. n के जगह पे 2 पुट अप करके देख लो बेसिक फॉर्मूले पे, आंसर आ जाएगा 2x. लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता, देखो सेम एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन इज सेम. फर्स्ट आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. dy dy of x square plus y square, dy dy of x square plus y square is equals to कितना आ गया, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे. अब वेरिएबल हो गया y, डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, x स्क्वायर और y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में y का कोई फंक्शन नहीं है. ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगेन x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, y स्क्वायर मतलब 2 सामने और पावर -1, आंसर विल बी 2y. तो आंसर कितना आ गया, 0 + 2y दैट इज 2y. इसमें मैंने लिया है अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है, dy dz ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब वेरिएबल क्या है, z तो है ही नहीं यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है. ब्रैकेट ओपन भी करोगे तो भी क्या होगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, आंसर विल बी 0. ठीक है. लास्ट में मैंने लिया dy dz ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल क्या dz लिखा हुआ है, dz मतलब z वेरिएबल है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन विल बी 0. सिर्फ क्या डिफरेंशिएट होगा, z स्क्वायर. तो dy dz ऑफ z स्क्वायर, फिर से बेसिक फॉर्मूला x टू द पावर n वाला, पावर सामने मतलब 2 सामने आ जाएगा यहाँ पे और पावर -1 दैट इज 2z है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 2z टू द पावर 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2z. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n - 1. लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दिया कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, और सेपरेट आउट. इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड. दिस इज द बेसिक फॉर्मेट टू राइट इंटीग्रेशन. दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. ये ऐसे करके x टू द पावर n और dx, यहां पे भी ये जो x है वो वेरिएबल बताता है. यहां पे डिवीजन में था, डिनोमिनेटर में था, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है. इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना होगा तो पावर +1 अपॉन पावर +1, x टू द पावर +1 अपॉन पावर +1, n+1 अपॉन n+1. इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन. नाउ वी विल सी इंटीग्रेशन. Now we'll see few examples of integration. First example is, suppose we have written integration x square dx. मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बता ही दिया. ये लिखने का फॉर्मेट है इंटीग्रेशन x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ dx. अगर आप dx dy dz अगर ये वाला टर्म नहीं लिख रहे हैं, if you are not writing this term, there is no sense of writing this integration. ये टर्म यहाँ पे जरूरी है. फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1. Suppose we have written x square dx, integration of x square dx. x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है. फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर n+1, n की जगह पे है ये
n के जगह पे क्या है 2 है, x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1 एंड आंसर कितना आ गया x cube upon 3। सेकंड मैंने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ y x square dx। नाउ वेरिएबल इज x, यहाँ पे y मल्टीप्लिकेशन में है तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे। अब क्या लिखेंगे y into x square dx। x square dx का भी हमने निकाला, कितना था आंसर x cube by 3, तो आंसर कितना आ जाएगा y into x cube by 3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम y की जगह पे 6x square रखते तो 6 बार आ जाता, 3x square रखते 3 बार आ जाता, yx square है y बाहर आ गया, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। वेरिएबल कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा जो भी मल्टीप्लिकेशन में है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 था, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या हुआ, आपको dx को ऐड करना है, इंटीग्रेशन का सिंबल है मतलब ऐड होगा। जैसे मैंने ये लाइन यहाँ पे बनाई, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके x तक, द टोटल लेंथ इज 0 to x, so what is the length of total line, x minus 0, that is x। if I split this complete line in dx 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 part, ये मैंने dx 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 यहाँ पे बहुत छोटी छोटी फ्रेम्स ले ली और सारे पार्ट्स को मैंने dx 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 करके स्प्लिट आउट कर दिया। इन सारे dx को ऐड करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, ये कंप्लीट लाइन मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स हैं। ठीक है, आई हैव स्प्लिटेड दिस लाइन इन dx, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, ये भी dx, ये भी dx, ये भी dx, ये भी dx, ऐसे बहुत सारे पार्ट रहेंगे, लेकिन सारे dx को ऐड करने पे इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या होगा, यू हैव टू ऐड x, तो कितना मिलना चाहिए, टोटल लेंथ मिलना चाहिए 0 से लेके x, तो आंसर ऑफ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x। दिस इज जस्ट अ वे टू एक्सप्लेनेशन। इंटीग्रेशन ऑफ dy होता तो आंसर क्या आता y, इंटीग्रेशन ऑफ dz होता तो आंसर क्या आता z। ओके, फोर्थ एग्जांपल मैंने लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx, ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन y स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर dx में देखो यहाँ पे dx है मतलब x वेरिएबल है, x स्क्वायर का आंसर क्या था x क्यूब बाई 3, n के जगह पे 2 है तो x टू द पावर 2 plus 1 upon 2 plus 1 दैट इज x क्यूब बाई 3। सेकेंड टर्म में यहाँ पे y स्क्वायर है लेकिन वेरिएबल क्या था x, तो y स्क्वायर क्या हो गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर हम इसको लिख सकते हैं और फिर क्या बचेगा इंटीग्रेशन dx। अगर y स्क्वायर बाहर आ जाता है, इफ वी टेक y स्क्वायर आउटसाइड, the remaining will be integration dx, integration of dx is x, आंसर क्या आ गया y square x। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल y कर देता, सपोज इफ आई रिप्लेस दिस x by y, तो आंसर क्या आता, सो द आंसर उस टाइम पे होता x square dy प्लस इंटीग्रेशन y square dy। अगर मैं यहाँ पे x को dx को रिप्लेस करके dy लिख देता तो आता है इंटीग्रल x स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रल y स्क्वायर dy। नाउ हियर y इज वेरिएबल, तो यहाँ पे x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dy बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y, ये आ गया प्लस, अब यहाँ पे क्या वेरिएबल है y, साथ में y स्क्वायर है, फिर से फॉर्मूला लगाओ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, y स्क्वायर का हो जाएगा ये y क्यूब बाई 3, y क्यूब बाई 3। अगर यहाँ पे z होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे z कर दूंगा अगर मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dz, देखो जैसे वेरिएबल चेंज हो रहा है सेम एक्सप्रेशन का आंसर चेंज हो रहा है, यही पर्पस है मेरा इसको समझाने का। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dz प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dz। अब वेरिएबल क्या है z, x स्क्वायर भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, y स्क्वायर भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, x स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dz z, y स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर z। देखो आंसर फिर से चेंज हो गया, x स्क्वायर z, x स्क्वायर z, y स्क्वायर z। okay, so I think this basic is clear to you. This is a very basic, very important. If you get these points, physics is very easy. फिजिक्स लोगों को टफ ही इसलिए लगता है क्योंकि कैलकुलस समझ में नहीं आता और फिर पूरे साल उलझे रहते हैं 11th फिजिक्स में कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है,
Physics is all about concepts. In my most of the videos you will see, you will not see a tedious derivations. आप मेरे में derivations बहुत कम देखेंगे, concepts ज़्यादा देखेंगे, practical demonstration के through. Okay, so this is all about calculus. Before you start studying physics for class 11, you must go through these x to the power n differentiation and integration. आधे से ज़्यादा physics इसी पे based है. Trigonometric functions के भी हम integration differentiation आगे आने वाले time पे हम देखेंगे. Okay, so this is all about today's class. Thank you so much. Stay at home, stay safe. Thank you.